And these are live pictures that we are getting to you from Farrukhabad, India, against corruption activists clashing with Congress party workers in Farrukhabad. We'll get to these pictures once again. There's been a clash between Congress party workers and India against corruption activists. Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, India against corruption activists are in Farrukhabad. They're telling the Congress party workers and the voters at large in Farrukhabad not to vote and elect Salman Khurshid from Farrukhabad again. Just before the press conference, and these are pictures that we're getting to you, listen in to the clash that took place. And these are pictures of that clash, India against corruption activists in Farrukhabad clashing with Congress party workers, clashing with supporters of the External Affairs Minister Salman Khurshid. Salman Khurshid is a member of parliament from Farrukhabad. Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, Kumar Vishwas, several other activists of India against corruption are presently in Farrukhabad. This was a threat that Arvind Kejriwal is now carrying out when Salman Khurshid's trust, the Zakir Hussain Trust, when irregularities in the trust were brought to the fore. India against corruption activist turned politician Arvind Kejriwal said he would travel to Farrukhabad and he would educate the voters of Farrukhabad. He would tell the voters of Farrukhabad not to vote for Salman Khurshid. At a closed door meeting, Salman Khurshid was quoted as saying, "वो आएंगे तो पर जाएंगे क्या?" And this led to a lot of hue and cry. You can see police deployed at Farrukhabad, police trying to ensure that Congress workers were kept at bay from the rally of India against corruption. There were fears that there would be clashes, and these are initial pictures that are coming in. India against corruption activists clashing with Congress party workers at Farrukhabad. Headlines today's Ankit Tyagi is on ground zero. He'll get you more details. And just now the pictures that you see are Bharatiya Kisan Union, BKU workers. There was a ban, there was a prohibitory order that nobody would be wielding lathis in Farrukhabad. That lathi order being violated by BKU workers. In these pictures, clashes between Congress party workers, BKU workers and India against corruption activists. The police have been deployed there. It is now battleground Farrukhabad. Arvind Kejriwal just earlier this morning was asking voters of Farrukhabad to be very careful who they vote, who they elect in the next general elections. And headlines today's Ankit Tyagi now joins me for more from ground zero. Ankit, what led to the clashes? What's the latest? Well, I am at the rally ground where Arvind Kejriwal along with other members is on the stage, but the sources are telling us that a few meters from here there were few Congress workers who were showing black flags to Arvind Kejriwal's cavalcade. They clashed with a few of the cars that were in the cavalcade and EAC workers. The police had to intervene, and in all this there was a mild lathi charge that was done on both sides. Right now, the situation the authorities here are telling us is under control. But Gaurav, as soon as Arvind Kejriwal entered the
Farrukhabad city limits. Right from then, there were pockets where Congress workers were standing with black flags. So Congress is making sure that Arvind Kejriwal does not go back unchallenged on top of Salman Khurshid. Okay, now take us through the number of people who are turning up to listen to Arvind Kejriwal and the number of people who are actually showing him black flags on ground zero. And who are these people that we see, the Bharatiya Kisan Union workers clashing with the police and India Against Corruption activists? Few of these activists are believed to be Bharatiya Kisan Unions and other were the members of India Against Corruption. Their clashes were between the group of Congress workers, those who were showing black flags to this entire cavalcade. As of now, at the rally ground where Arvind Kejriwal is on the stage with, there must be about 1,000 and 1,500 people who have come here to listen to Arvind Kejriwal. The authorities have put on a massive security cover. A lot of security personnel have been deployed in and around, sensing that there might be some trouble. That is why a massive police arrangements have been made. Although all these disturbances have been few meters away from the main rally ground. So as of now, we are still awaiting if there is any casualty or somebody has been injured. But here at the ground zero where Arvind Kejriwal is sitting on the stage, there are about 1,000 people, a little more than 1,000 here waiting for Arvind Kejriwal to speak. Okay, stay on with me, Ankit. Two pictures that our viewers can now see on the television screen, the clashes that took place outside the venue and activity at the rally ground in Farrukhabad. This is External Affairs Minister Salman Khurshid's constituency. Arvind Kejriwal, India Against Corruption activists taking the battle to ground zero, to Farrukhabad, to Salman Khurshid's constituency, saying they want to sensitize people about the alleged irregularities in the Dr. Zakir Hussain Trust. This was an expose where Arvind Kejriwal and India Against Corruption activists insist that certain irregularities were brought to the fore. Money was taken, grants were taken, but wheelchairs, tricycles, hearing aids that were to be provided to several alleged beneficiaries, they were provided these facilities only on paper. That was the allegation and a charge that both Salman Khurshid and Louis Khurshid of the Zakir Hussain Trust, they've denied those charges, they've contested those charges, but India Against Corruption taking the battle to ground zero. Ankit, what is it that Arvind Kejriwal is telling the people of Farrukhabad? Right, Gaurav, the message that Arvind Kejriwal wants to emanate here is that they are here at the turf of Salman Khurshid, a man against whom Arvind Kejriwal has taken up that mental after the India Today expose. Now, Arvind said that they are not here to expose more, they are not here to get more, to show more proof. But the problem is, he said that even after exposing so much, even after standing against Salman Khurshid, no action has been taken against him. Arvind Kejriwal says that the message he wants to give the people of Farrukhabad is that this is the man who chose for the parliament. This time he wants to challenge Salman Khurshid, says that the people should not vote him back in 2014. Okay, let's for a moment dip in and listen in to Manish Sisodia and Kumar Vishwas. नेता की चोरी सामने आती है तो नेता चिल्लाने लगता है, देखो लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। तो आइए लोकतंत्र को एक बार और खतरे में डालते हैं। वो उसको लोकतंत्र कहते हैं और सारी दुनिया उसको लूटतंत्र कहती है। तो आइए एक बार इस नेताओं के लोकतंत्र को और हमारे अपने, जिसे हम लूटतंत्र के नाम से जानते हैं, उसके दो तीन नमूने और आपके सामने रखते हैं। भाई इलाहाबाद से हमारे साथी आए हैं, इनको ऊपर ला सकते हैं क्या? चल पाएंगे? पप्पू कुमार जी को ले आइए पहले। पप्पू भाई धर्मेंद्र, आप देखिए धर्मेंद्र। हाँ, ये जो भाई है ये पप्पू कुमार जी हैं।
ये आपको इस तथाकथित लोकतंत्र जो बार बार किसी सलमान खुर्शीद जी के बारे में कहा जाता है, जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है तो सलमान खुर्शीद जी से लेकर नितिन गडकरी तक सब कहने लगते हैं कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। उस लोकतंत्र के साक्षी हैं ये, उस लोकतंत्र के साक्षी हैं। इन भाई का नाम है पप्पू कुमार। इनसे अभी आपका परिचय कराते हैं। ये बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, और जो इलाहाबाद की लिस्ट लुईस खुर्शीद जी ने जारी की थी, सलमान खुर्शीद साहब की ट्रस्ट ने जारी की थी, इलाहाबाद से आए हैं आप। इलाहाबाद की लिस्ट में 74वें नंबर पर इनका नाम लिखा हुआ है, पप्पू कुमार सना बहादुर पटेल। लाल गोपालगंज में रहते हैं और इनके नाम एक वॉकर दिया गया, चलने के लिए इनको वॉकर दिया गया। तो उठ भी नहीं सकते हैं, चलने के लिए वॉकर में कैसे जाएंगे? इनके लिए वॉकर दिया गया। वॉकर मतलब वो जो आगे लगा रहता है, जिसको लेके पकड़ के कोई विकलांग साथी चल पाते हैं, उसकी मदद से। इनसे एक कदम नहीं चला जा सकता पप्पू भाई से, लेकिन लिस्ट में लिखा हुआ है कि इनके नाम से एक वॉकर दिया गया। इनको तो अगर चाहिए तो व्हील चेयर चाहिए। ना इनका भाई का हाथ काम कर पा रहा है, ना इनका पैर काम कर पा रहा है, लेकिन वाह सलमान खुर्शीद जी और उनकी पत्नी लुईस खुर्शीद जी की ट्रस्ट कि उन्होंने लिख दिया। उनको लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा इस लोकतंत्र का, और जब किसी को पता चलेगा तो कह देंगे देखो अरविंद केजरीवाल जी लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। तो ये साथी इसका एक नमूना है। अब तो बोल तो साथी पाएंगे नहीं। बरेली से हमारे बीच 2 साथी आए हैं, इलाहाबाद के एक और साथी हैं, बरेली वाले। अच्छा, बरेली से आपका नाम? नहीं, धर्मेंद्र कुमार तो ये वो इलाहाबाद की लिस्ट में। बरेली से, हाँ वो देख रहे हैं। बरेली से हमारे साथ 2 साथी हैं, उनका हम पहले परिचय लेते हैं और फिर बताएंगे कि जाकिर हुसैन जी के नाम पर बने इस ट्रस्ट में क्या क्या नहीं हो रहा है। इनको भैया वहीं बिठाओ। आराम से देखो, अरे कुर्सी 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 कुर्सी। हाँ, पप्पू कुमार जी पे चला नहीं जाता है, लेकिन इनके नाम से वॉकर का पैसा निकाल के और खा गए। कौन खा गए? जोर से बताइए जरा, मीडिया वालों के माध्यम से देश तक पहुंचे। कौन खा गए? और ये कौन बता रहा है? फर्रुखाबाद का मलिक बता रहा है कि फर्रुखाबाद का नौकर खा गया। फर्रुखाबाद की जनता ने जिसको अपना सेवक चुना था वो खा गया। ये हमारे बीच में 2 साथी हैं जो बरेली से आए हैं। हम चाहेंगे कि आप अपना पहले परिचय दे दें। आपका नाम? श्याम बाबू सर। श्याम बाबू। श्याम बाबू जी सर। जी सर, मेरा नाम मदन लाल। भाई मदन लाल जी, आप सोनू? श्याम बाबू। मदन लाल जी का नाम इसमें लिखा हुआ है। श्याम बाबू जी का लिस्ट देखना पड़ेगा। मदन लाल जी का नाम इसमें लिखा हुआ है। और मदन लाल जी, आपके नाम पर आपके फादर का नाम? श्री मेहिलाल। श्री मेहिलाल जी। ग्राम सुरला, थाना भोजपुरा, डिस्ट्रिक्ट बरेली जी। आपको कोई वो मिली है साइकिल? सर मुझे तो कुछ नहीं मिला है। जब से मैंने होश संभाला है मुझे तो किसी सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है। आपको बताऊं सर, मुझे कुछ भी नहीं मिला है। मैं जहां तहां भटकता रहा कि आज वहां कैंप लगा है, कि आज फला जिला में कैंप लगा है। मैं हर जिले में गया, पैसा बेच के, गेहूं बेच के गया, मुझे कुछ नहीं मिला। सारा पैसा मेरा बर्बाद हुआ। मुझे किसी सरकार ने कुछ नहीं दिया। मदन भाई के नाम पर सलमान खुर्शीद जी की ट्रस्ट कहती है कि इनको एक ट्राई साइकिल दी गई थी। शेम 5675 रुपए की, 5675 की साइकिल इनके नाम से खा गए सलमान खुर्शीद जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूं सर। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग हमारे सब विकलांग भाइयों की मदद करें, जल्द से जल्द हमें न्याय दिलाएं। जो पैसा सलमान खुर्शीद ने खा चुका है उसके लिए वापस दिलाएं आप लोगों से। मैं आप यही अनुरोध करता हूं।
और आपसे धन्यवाद है सर। मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। हमारा पैसा जल्द से जल्द वापस दिलाएं, हमें कुछ ना कुछ न्याय जरूर दिलाएं। इनके नाम की चोरी किसने की? देख लीजिए भाइयों, फर्रुखाबाद के मालिकों, आपने जिस आदमी को सेवक बना के भेजा उसने क्या कर दिया। मेरे इधर बैठे हुए भाई धर्मेंद्र जी, ये भी इलाहाबाद से आए हैं और इनका विकलांग साथियों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इस लोकतंत्र की लूट को देश के सामने रखने के लिए आज इस महारैली में आए हैं। देश उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं। इतने साहस, इनके साहस को सलाम करिए। आपकी तालियों में इनको साहस मिलेगा, इनको हिम्मत मिलेगी। जोरदार तालियां बजा के एक एक आदमी का स्वागत करिए। ये वो लोग हैं जिनके हिस्से का विकलांग, जिनके हिस्से की चेयर, जिनके हिस्से की बैसाखी आपके सेवक ने खा ली, फर्रुखाबाद के उस चोर ने खा ली, फर्रुखाबाद के नाम पे बने उस सेवक ने खा ली। भाई धर्मेंद्र कुमार जी हैं, धर्मेंद्र कुमार जी। अच्छा हाँ, आप अपना परिचय बता दीजिए, कहाँ से आए हैं? हेलो हेलो। हाँ सर, हमारा परिचय है। हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार, पिता का नाम रामपाल, मैं लाल गोपालगंज के रहने वाला, गाँव चैनी के पूर्वा। आपको किसी ट्रस्ट की ओर से या सलमान खुर्शीद जी की ट्रस्ट की ओर से कुछ मिला? मुझे कुछ नहीं मिला अभी आज तक, साइकिल नहीं मिली। मैं पेशाब करने के लिए जैसे जाता हूँ वैसे बैठ कर जाता हूँ। झाड़े झाड़ने के लिए तो उसके लिए भी इसके नहीं जाने का पता है। सब दो भाई हैं, उसको उठा के ले जाते हैं तो मैं झाड़े करता हूँ। और इलाहाबाद की जो बेनिफिशियरी की लिस्ट है जाकिर हुसैन ट्रस्ट की, उस 2009-10 की, क्योंकि वो फोटो कब का दिखा दें पता नहीं, 2009-10 की लिस्ट में 19 नंबर पर लिखा हुआ है, 19 नंबर पर लिखा हुआ है कि भाई धर्मेंद्र जी सन ऑफ रामपाल जी को, जो लाल गोपालगंज के नैनिकापुरा के रहने वाले हैं, ट्राई साइकिल दी गई थी इनको। आपको मिली कभी ट्राई साइकिल? नहीं सर, हमको नहीं मिली है। ये है सच, ये है सच जो आपके सामने रखने आए साथियों। बरेली से भाई, अच्छा ओहरीलाल जी, श्याम, अच्छा सोनू, ये बरेली से भाई सोनू है। सोनू जी, आपके नाम से ट्राई साइकिल लिखी है, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। कहाँ रहते हैं आप? मैं बरेली का रहने वाला हूँ, मेरा नाम सोनू है और मेरे जो पिताजी हैं वो श्री होरीलाल हैं। मेरे नाम पे इन्होंने 2 ट्राई साइकिल दे दी हैं। मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, इंटर फर्स्ट ईयर का, और जीआईसी बरेली इंटर कॉलेज में छात्र हूँ और ट्रेन से आना जाना है मेरा। और जो मेरे घर वाले हैं वो साइकिल से स्टेशन तक पहुंचाने जाते हैं। इसलिए अभी मेरे नाम पे जो ट्राई साइकिल हैं वो अभी तक तो कोई मिली नहीं है। कई बार बुलाया गया है लेकिन देखते हैं अगले मिलती है या नहीं। भैया आपके नाम की सोनू भाई, यहाँ ये बरेली की लिस्ट है, फर्रुखाबाद के साथियों बरेली की लिस्ट है, और बरेली 2009-10 की जाकिर हुसैन ट्रस्ट के लाभार्थियों की लिस्ट है। इसमें तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है सोनू सन ऑफ होरीलाल जी, ग्राम प्रहलादपुर के रहने वाले को ट्राई साइकिल दी गई है 2009-10 में। शर्म की बात है कि नहीं है? क्या कर रहे हैं देश के नेता, क्या कर रहे हैं सलमान खुर्शीद जी? तीसरे नंबर पे इनका लिस्ट पे नाम लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे। ये कोई हम फर्जी फोटो दिखा के हम प्रेस को या देश को कुछ गुमराह नहीं कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे बरेली की लिस्ट में नाम लिखा हुआ है भाई सोनू जी का। सोनू यहां बैठे हुए हैं और आपके सामने इन्होंने बताया कि ये इंटर में पढ़ते हैं। इलाहाबाद, इनको बुलवा दीजिए। श्याम बाबू जी, इनका नाम अच्छा गौतम बाबू। अच्छा आप बताइए अपने एक साथी और है बरेली से, एक साथी और आए हैं, श्याम बाबू और गौतम बाबू। आपको कभी कुछ मिला अपने बारे में? कहां से आए हैं? अपने पिताजी का नाम बता दीजिए। और कुछ मिला कभी? सर मैं पीपलसाना चौधरी का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का नाम श्री ओमकार है।
कभी आपको साइकिल या कोई मदद मिली इन लोगों से? कुछ नहीं सर। इसमें लिखा हुआ है कि इनको ट्राई साइकिल मिली है, ट्राई साइकिल मिली है। बरेली की लिस्ट में गौतम बाबू सन ऑफ ओंकार उर्फ श्याम बाबू का नंबर 22 नंबर है, 22 नंबर, 22 नंबर पर इनका नाम लिखा हुआ है। ये सब चोरी हो गया। और कौन ले गया? बैसाखी चोर कौन? साथियों, ये तो विकलांग जन थे जिनका हक मारा गया। एक हमारे बीच में ऐसे नौजवान आए हैं जो बेचारे विकलांग ही नहीं है, उनको विकलांग बना दिया जाकर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट ने। आ जाइए, आइए। ये सत्यम यादव, नोएडा ना, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। बोलिए अपना अपना पूरा परिचय ये देंगे। सीरियल नंबर मीडिया को हम बता रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की सूची में 2009-10 में इनके नाम पर क्या निकाला गया है, और ये पूरे ठीक ठाक है। इनको कोई तकलीफ है आपको? ये कह रहे हैं पहलवानी भी कर सकते हैं, विकलांग नहीं है। सलमान खुर्शीद साहब अगर इनको चैलेंज देंगे तो उनके पास जा सकते हैं, बता रहे हैं ये। मैं सत्येंद्र सिंह, ग्राम खानपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर से बिल्कुल सही हूं। शायद खुर्शी को जिनको लगता है कि मैं लंगड़ा हूं, इसलिए वो उस साइकिल को अपने पास ही रखा, मेरे को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको काम आ सकती है, वो अपना पास रखे उसको। क्या नाम है आपका? सत्य सिंह। नोएडा की लिस्ट में 18 नंबर पर इनका नाम लिखा हुआ है, 18 नंबर पर इनका नाम लिखा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है कि इनको ट्राई साइकिल दी, एक अच्छे खासे आदमी को ट्राई साइकिल दी। क्या कहना चाहते हैं देश के कानून मंत्री? कौन से कानून के तहत काम कर रहे हैं देश के कानून मंत्री? और अब आप जानते हैं कि वो देश के कानून मंत्री नहीं रहे, पूरे देश को बैसाखियों के सहारे चलता छोड़ के वो दुनिया में निकल पड़े विदेश मंत्री बनके। देश को तो बैसाखियों पे खड़ा कर दिया, और अब चल दिया है कहां? विदेश मंत्री बनके। भारत में तो खूब नाम कमा लिया, खूब पैसा कमा लिया, 5-5 हजार रुपए विकलांगों के छीन के खा गए, इतना पैसा कमा लिया। अब विदेश मंत्री जाके दुनिया में नाम कमाएंगे। तो साथियों, गौतम बुद्ध नगर हो गया, बरेली हो गया, इलाहाबाद हो गया। अब हम आपको आपके ही जिले के एक साथी से मुलाकात कराते हैं, फर्रुखाबाद के साथी से, पप्पू सिंह यादव। इनका नाम 37 नंबर पर है 2009-10 की सूची में। 2009-10 की सूची में 37 नंबर पर इनका नाम है। अभी आगे अपनी बात कहेंगे। लिस्ट। हाँ, पम्मू भाई, आप लोग थोड़ा सा उधर से। हाँ सर, मतलब हमको 2005 में साइकिल दी थी सलमान खुर्शीद ने, लेकिन 2008, 2000 और 2009-10 में कोई साइकिल नहीं मेरे पास। ठीक है, इंटर में पढ़ता हूँ और मुझको कोई सुविधा नहीं है। और जब मीडिया वाले साथियों, आपके नाम पे यहाँ से देखो 37 नंबर पे लिखा हुआ है। जी जी, यहाँ पे 2009-10 में आपको 23 साल आपकी उम्र लिखी है, और ट्राई साइकिल लिखा हुआ है। ट्राई साइकिल हमको 2005 में दी थी। किसने दी थी? वहीं से मिली थी। 2005 में जिनको इन्होंने बांटी थी, 2009-10 में भी उन्हीं के खाते में चढ़ा दी दोबारा से। और जब मीडिया वाले साथियों ने जाके पूछा कि आपने ट्राई साइकिल चोरी कर ली, तो बोले मैं इतना बेवकूफ हूं कि फर्रुखाबाद की जनता की साइकिल चोरी करूंगा मैं? डायन भी 7 घर छोड़ के डाका डालती है। तो साथियों, फर्रुखाबाद के जो कुछ नौजवान, कुछ साथी उनके बहकावे में आके हम लोगों से नाराज हो रहे थे, उनका साथ हमारे पम्मू यादव जी को उनका साथ चाहिए। उनको सलमान खुर्शीद का नारा लगाने के बजाय इनके साथ खड़े होकर उनकी मुर्दाबाद लगानी चाहिए। इनका वोट देना चाहिए। मुर्दाबाद, नाम पे हक मारा गया है। सलमान खुर्शीद मुर्दाबाद। तो साथियों, अब मैं
जो पंकज यादव जिनको आपने दिल्ली में देखा होगा, मैनपुरी के साथ ही उनको आमंत्रित कर रहा हूं। ऊपर पंकज यादव जी थोड़ा ऊपर से मदद कर देना इनकी। पंकज भाई मैनपुरी के रहने वाले, मैनपुरी की सूची दो। और कितने नंबर मैं ऊपर उमेन पंकज भाई को ऊपर उमेन पंकज भाई को ऊपर आने मदद कर दो। पंकज भाई को आप देख सकते हैं, विकलांग है। मैनपुरी की सूची विवेक यादव जी के पास है, वो लेके आ जाए। इनको ठीक से सुनाई देता है, आप कोई जोर से नारा लगाएंगे तो ये बता देंगे किसके नाम का लगा है। हेलो सलमान खुर्शीद जिंदाबाद। आप बता दीजिए क्या बोला है इन्होंने, मुर्दाबाद बोला कि जिंदाबाद? गांव में जाके देखना भी मुनासिब नहीं समझा कि जिसका नाम यहाँ लिस्ट में, जिले की लिस्ट में लिखा हुआ है, उसको उस नाम का कोई आदमी वहां रहता भी है कि नहीं। बस लिस्ट उठाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और उसके सामने लिखते चले गए। इसी क्रम में इनका नाम मैनपुरी की लिस्ट में 64वें नंबर पे लिख दिया गया। संजय भाई के पास लिस्ट है, 64वें नंबर पे लिख दिया गया कि पंकज भाई एक हैं, फला गांव में रहते हैं, और उनको हमने, क्योंकि लिस्ट में विकलांग नाम है तो दे दो, मशीन दे दो। कागजी मशीन बांटने में क्या जाता है। इसके बाद इटावा से आए हैं भाई, और पंकज जी के पीड़ा को कोई और सुने न सुने, इस देश में समाजवाद का झंडा लेकर चलने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो मैनपुरी के सांसद हैं, उनको पंकज यादव की पीड़ा जरूर सुननी चाहिए और सलमान खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए कि एक फर्जीवाड़ा उनके क्षेत्र के व्यक्ति के साथ किया गया। मैं मैनपुरी के और साथियों को आपके सामने लाऊंगा। ये रिंकू जी इटावा से हैं। रिंकू भाई, मेरा नाम है रिंकू, जयपुर तोताराम, जयपुर तोताराम, बसरेर से आए। आपको क्या, आपके पैरों में प्रॉब्लम है? आपको दो भाई हैं, एक ही साथ जहां भी जाते हैं, जहां मीटिंग लगाते हैं तो कोई नहीं सुनता। मेरी पेंशन भी नहीं आती है, 2 भाई में थे, 2 महीने की 2 साल की पेंशन खाली। अब मैं क्या करें? आपको कभी साइकिल मिली है क्या? हमें कुछ नहीं मिला साइकिल, आगे जामी में जाते तक कहते तुम क्या इन करने आए, क्या लेने आ गए हो? हाँ ऐसे कहते हैं। और 2009-10 में कुछ मिला? साइकिल, बैसाखी कुछ नहीं मिला। साथियों, ये इटावा की लिस्ट है 2009-10 की, जाकिर हुसैन टेस्ट की, और इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले नंबर पर भाई, नहीं 7वें नंबर, 7वें नंबर पर, 7वें नंबर पर रिंकू भाई का नाम लिखा हुआ है, और इनको लिखा हुआ है कि इनको ट्राई साइकिल दी और बैसाखियां दी, दोनों दी, और भाई कह रहे हैं कि दोनों नहीं मिली, झूठ लिखा हुआ है, दोनों ने नहीं दी है। ना इनको साइकिल मिली है और ना कोई बैसाखी मिली है। मुलायम सिंह है मैनपुरी से, उनके नाम पता नहीं वही है कोई और। अच्छा, मुलायम सिंह जी मैनपुरी से आए हैं। आइए। अच्छा, थोड़ा मदद कर दो ना ऊपर आने में, ऊपर आने में मदद कर दो। हाँ इटावा वाली तो वो है, आपको दिखाई नहीं देता है, सुनाई भी कम देता है। सुनाई देते और जिन्होंने दिखा, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता है, नहीं देता, और सुनाई ठीक से नहीं देता है। सुनाई ठीक देता है? सुनाई देता है? नहीं देते, बताते हैं। अच्छा, तो आपको कभी सुनने की मशीन दी? कभी नहीं मिली था, हमें कभी नहीं मिली। और पैर ठीक है आपके? पैर तो है, लंगड़ा चलता है, थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं। लंगड़ा तो ही है। अच्छा, वैसे जब पूरे दिन लंगड़ा। अच्छा, घुटनों में दर्द होता है, लेकिन ऐसे घुटनों की वजह से लंगड़ा के चलते हैं। कहाँ से आए मुलायम सिंह जी? ये आए सब बेबस से आए हैं, मैनपुरी। अच्छा, और आपके पिताजी का नाम? सुखलाल सिंह। सुखलाल जी। साथियों, मुलायम सिंह जी मैनपुरी से आए हैं। सुखलाल जी के इनके जज्बे को इस उम्र में भी, इस लोकतंत्र के लूटतंत्र का सच बताने के लिए आपके बीच में आए हैं। इस लिस्ट में जो
मैनपुरी की लिस्ट है, मैनपुरी की लिस्ट है 2009-10 की। इसमें 9 नंबर पे नाम लिखा हुआ है मुलायम सिंह सन ऑफ सुखलाल जी को। इनका यह कहना है कि इन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता, लेकिन इनका यह भी कहना है कि इनको कोई मशीन मिली नहीं है। जाकिर हुसैन ट्रस्ट के कागजों में सलमान खुर्शीद जी ने लिखा है कि इनको वेरिंग मशीन दी गई और साथ साथ ट्राई साइकिल भी दी गई। इनका कहना है कि इनके घुटनों में दर्द है, लेकिन ट्राई साइकिल की जरूरत नहीं है, थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं। लेकिन जाकिर हुसैन ट्रस्ट ने, क्योंकि इनका नाम किसी जिले के कागज में विकलांगों की सूची में लिखा होगा, तो वहां से उठा लिया और कागजों में लाके लिख दिया कि इनको ट्राई साइकिल भी दे दी गई और सुनने की मशीन भी दे दी गई। किसने किया वो? याद करते रहना पड़ेगा साथियों, बार बार याद करना पड़ेगा साथियों। और 2014 तक याद करना पड़ेगा बार बार। साथियों, जो सलमान खुर्शीद जी काफी नाराज हो रहे थे, पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा, और एक टीवी चैनल के पत्रकार को हड़काने लगे, आज तक के दीपक शर्मा को, कि आपको मैं सबक सिखाऊंगा, ये आपकी आखिरी पीसी है। उनका सच आपके सामने आ रहा है। और खास करके ये विकलांग भाई जो असहाय है, मजबूर है, लेकिन आपके बीच में सलमान खुर्शीद का सच बताने के लिए आए हैं। जोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाइए। मैं मुलायम सिंह जी के जो उनका गृह जनपद है इटावा, वहां से एक शख्स पिंकू भाई यहां पर आए हैं। मैं चाहूंगा मनीष जी उनका परिचय कराएं। इटावा से पिंकू भाई, आप बोल सकते हैं? क्या आपके पिताजी का नाम क्या है? किशन कुमार। हाँ जी, किशन कुमार। अच्छा, और आपका गांव? And on the clashes that took place earlier in Farrukhabad, we are now joined by Mr. N. Chaudhary, who is the Superintendent of Police, Farrukhabad. Mr. Chaudhary, can you tell us if the situation, what's the situation now and what happened earlier? You see, the situation is absolutely normal. The public meeting addressed by Mr. Arvind Kejriwal is progressing absolutely normally and peacefully. There is whatever the reports have come regarding clashes or something. I don't have any specific input regarding any particular incident, but there was a small disagreement between some supporters of Kisan Union and a particular political party. So because that was regarding some passage of the way, whether they wanted to pass through a particular road. So anyway, to prevent any further disagreements between the two parties, we have changed their ways. The route has been made different, and anyway, it was this particular issue was sorted out 3 to 4 hours back. So now the meeting is progressing peacefully. Situation is absolutely normal. Did Congress party activists try to disrupt India Against Corruption rally at the rally ground, or activists from reaching there, prevent the activists from reaching there? So I don't have any specific input on this because we have stationed adequate security personnel in the meeting ground, and I don't expect anybody will be able to disrupt anything, and he will not be allowed to take the law in his hand. Nobody will be allowed to do. Okay, but is there any fear that the situation could go out of hand given the kind of the tension in the air, and India Against Corruption activists alleging that some Congress party activists were out to harm them or disrupt their rally? As far as I am concerned, we are absolutely confident. We have taken all measures. We don't anticipate any untoward incidents, but still we have kept all our preparations ready, handy. You must have seen that in your coverage that we are prepared for any eventuality, but I don't expect anything untoward. And Mr. Chaudhary, the pictures that are now on air, Bharatiya Kisan Union activists clashing with Congress party activists, this has nothing to do, you are saying, with the India Against Corruption rally that was happening near this venue? Whatever you are referring to took place more than 3 kilometers away from the rally spot. That was when they were basically passing through that particular area where some people of a particular political party, they were also sitting in a dharna or something, but that issue was sorted out 3 hours back. We don't have any other input regarding that incident. Mr. N. Chaudhary, Superintendent of Police, Farrukhabad, for the moment, many thanks for joining us.